नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रमंत्र लोकतंत्र। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विवेक देबरॉय, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा देश आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है अमृत महोत्सव के तौर पर। 75 वर्ष की ये यात्रा किस तरीके से देखते हैं आप? I think one should look at it not only in terms of what has not been accomplished, but also in terms of what has been accomplished. There were many people in 1947 who were not very hopeful about democracy continuing in India. Some of them were not very confident and optimistic about India continuing as a united country. Notwithstanding their dire predictions, India has continued, has prospered, has developed as a democracy. And what needs to be stressed is that India is remarkable in this region in South Asia, where except for a very brief period in the middle of the 70s, democracy has always been there. क्या बात है। इसकी वजह यह है कि हमारे मूल में ही लोकतंत्र है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। Yes, the Prime Minister said it, and indeed the roots of democracy go back to the sabhas and the samitis that we read about 4,000 years ago. So the roots of democracy are very strong. But when we think of democracy in India, particularly now, I don't think we should only think of it in terms of parliament and legislative assemblies. I think an enormous element in India's democracy today is also the third tier of governance, the panchayats and the urban local bodies. And of course, democracy is not only about the elected representatives. It is also about civil society, it's also about media. And there are many countries in the world which still do not have an independent media. इसको और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। तो क्या 75 बरस के जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें किस तरीके से लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहिए, जन भागीदारी कैसे तय करनी चाहिए, उसको लेकर और ज़्यादा काम करना चाहिए? और अगर करना चाहिए तो किन बिंदुओं को आप मानते हैं कि सबसे पहले उन पर काम करना होगा? काम शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, मगर मैं इतना ज़रूर कहूंगा that if you look at the preamble to the Constitution, it starts we the people. क्या बात? It does not start we the government. Whenever you use the word काम, people tend to think, अरे वो सरकार का काम है. Everything does not depend on सरकार. We the people, it is up to us, the citizens. We have rights and responsibilities. आप मीडिया में हो, let me mention the media. In most cases, you do not want the government to intervene. The government is forced to intervene, parliament is forced to make legislation because the self-policing does not happen. Media is a very powerful voice, it is part of civil society, but I am sorry to say, Indian media lacks the self-discipline, the self-regulation. I have myself suffered, आपको भी मालूम होगा, the false news will appear on page 1. If you complain, either the rebuttal will not be printed, अगर printed भी होगा, it will be tucked into page 11. And let me also remind you that in no country in the world is the right to speech an absolute right. And the first amendment to the Constitution was actually on this. क्या बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद इसी वजह से संसद टीवी जैसे चैनल की दरकार बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है संसद टीवी की। बढ़ तो जाती है, और मुझे आशा है कि कुछ गलत कह दोगे तो एटलीस्ट यू विल अपोलोजाइज एंड से ये गलत। जी, आजकल मीडिया इज सच दैट एंड टीवी मीडिया हैज मेड इट वर्स। नो वन सेज आई एम सॉरी। ये सॉरी शब्द जो है वो हम भूल गए हैं। हमारा हक सिर्फ है
मगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ओह, है। दिस आई थिंक इज हाँ, जनरली आपने ट्रू ऑफ अ लॉट ऑफ मीडिया। नब्ज पकड़ी है और अब प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हम लोग लोकतंत्र में अधिकारों की बात करते रहे हैं और शायद बहुत सारे विषय जो हैं इसलिए सामने आते हैं कि अधिकारों की बात हमने ज़्यादा की है, कर्तव्यों का निर्वाह करने में कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई है या फिर कमी रह गई है। इसलिए संविधान में जो कर्तव्य हमें दिए गए हैं निर्वाह करने के लिए, उसके बारे में बताना पढ़ाना बेहद आवश्यक है। आपको भी लगता है? हम बिल्कुल लगता है, मगर मैं सिर्फ सिटीजन की बात, नागरिक की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें सभी आ गए। मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं, व्हाट डज द प्रेस काउंसिल डू? इज द प्रेस काउंसिल नॉट सब्जेक्ट टू डेमोक्रेटिक नॉर्म्स? जहां तक मुझे मालूम है, शायद मैं गलत बोल रहा हूं, जहां तक मुझे मालूम है देयर हैव बीन नो इलेक्शंस फॉर क्वाइट सम टाइम। तो अगर ये बात है, मुझे मालूम नहीं है सच है या नहीं, अगर सच है तो हाउ कैन द मीडिया टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, अगर वो खुद विश्वास नहीं करते हैं तो? जी, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 बरस आज़ादी को हो गए हैं, तो क्या एक तरीका हो सकता है अमृत महोत्सव मनाने का जिससे देश के निर्माण में भी हम लोग जी जान से जुट जाएं? देखिए, एक ही साथ दो अलग चीज़ है। एक तो यस, अमृत महोत्सव, it is 75 years of independence, but the framework for the democracy that we are today is the constitution. So 47 is important, 1950 is also important. ठीक बात। If India is going to become a better country, the responsibility which is there in the constitution also is on of all of us. Sabka Vikas, as the Prime Minister said last month, has also got to be सबका प्रयास। हम कुछ नहीं करेंगे और हम सोचेंगे नहीं सरकार का काम है, then it doesn't happen। तो हमें भी तो करना है ना। जी जी, जन भागीदारी तय करनी होगी। जन भागीदारी या sometimes it is as an individual, sometimes it is as a community, जो हमारे ट्रेडिशन में हुआ करता था, हम अब भूल गए। तो जन भागीदारी के लिए लोकतंत्र का मजबूत होना आवश्यक है और लोकतंत्र से जुड़े हुए जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनका लगातार काम करना भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने एक टैगलाइन दी कंटेंट को लेकर और उन्होंने कहा कंटेंट इज कनेक्ट, और उन्होंने कहा कि केवल ये टीवी चैनल के लिए नहीं है, ये संदर्भ उन्होंने संसद में होने वाली कार्रवाई को लेकर भी कहा कि वहाँ पर पॉलिटिक्स कम होती है, पॉलिसी ज़्यादा बनती है, और जितनी कम पॉलिटिक्स होगी और पॉलिसी ज़्यादा बनेगी उतने ही कनेक्ट होगा, यानी कि जनता उतना ही संसद से, लोकतंत्र से और चुनावी प्रक्रिया से लगातार जुड़ती रहेगी। मैं और एक चीज़ इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। आई हैव टू बी प्राउड ऑफ माई कंट्री। ये प्राइड, until this pride happens, the other things will not happen. I think that since the present Prime Minister became the Prime Minister, there has been an increase in pride as an Indian. And every Indian who goes abroad is an ambassador for India. If that person steals from the hotel, then that is not displaying India's pride. So somehow as citizens we have to be proud of being Indians. क्या बात, वो मुझे लगता है धीरे धीरे अब हो रहा है, धीरे धीरे प्राइड भी बढ़ रहा है और मुझे तो लगता है आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है वो उस संकल्प की भी पूर्ति हो रही है। उस दिशा में भी क्या हम जा रहे हैं, या फिर आपको लगता है उस संकल्प की पूर्ति के लिए हमें कुछ ज्यादा करना होगा? नहीं, दिशा तो वही है, बट वॉट एवर वन इज ट्राइंग एंड वॉट एवर वन अचीव्स, जो अचीवमेंट है वो जो एस्पिरेशन जो है उससे कम होगा, ये तो डेफिनेशनली है। तो हमें टारगेट थोड़े से ऊंचे हमें सेट करने होंगे कि कहीं ना कहीं कि उसके आसपास भी पहुंचे तो दुनिया में अव्वल कहला। टारगेट का मतलब ही तो वही है ना कि 100% हम कभी अकॉम्प्लिश नहीं कर पाए, मगर धीरे धीरे वो तो बढ़ना चाहिए। जी, लेकिन हमने समय समय पर जो है आत्मनिर्भरता के पड़ाव जो हैं हमने हासिल भी किए हैं। हमने खाद्यान्न में
आत्मनिर्भरता हासिल की, हमने दूध में आत्मनिर्भरता हासिल की और अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी हम लोग आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक शक्ति के रूप में सामने आए हैं। और राष्ट्रमंत्र लोकतंत्र का यही जो है कहना भी है कि हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस लोकतंत्र को मजबूत करें, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ें। आपने समय निकाला, बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, धन्यवाद। जी हाँ, राष्ट्रमंत्र लोकतंत्र में इतना ही। मुझे दीजिए आगे, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।